Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, GDB Government Girls College, Kota. Three-membered heterocycles, Part 3rd, MSc Semester 3rd के में आपका स्वागत है। हम थ्री-मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स कंपाउंड के ऑक्सीडेंस हम किस तरह से बना सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीडेंस। हमने देखा था कि सिंथेसिस फ्रॉम एल्कीन्स, इसमें फर्स्ट रिएक्शन हमने देखी थी इपॉक्सीडेशन, कि इपॉक्सीडेशन से हम किस तरह से ऑक्सीडेंस को फॉर्म कर सकते हैं। इसी क्रम के अंदर एल्कीन्स रिएक्ट्स विथ HOBr और HOCl to give halohydrin that is converted into oxirane by alkali. Thirio 3-bromo 2-hydroxybutane gives cis epoxides and erythro 3-bromo 2-hydroxybutanes gives trans epoxides. तो इस तरह से हम जो है सिस और ट्रांस इपॉक्साइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह से हम देखें कि द रेट ऑफ cyclization is affected by the substituent present at C1, thus A cyclize 11 times faster than B. तो ये हम देखें कि किस तरह से जो है ये A जो है वो B से फास्ट साइक्लाइज होता है, इससे साइक्लिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक alkylation of carbonyl compounds, insertion of CH2 group. Oxidane can be obtained from carbonyl compounds by reaction with carbon anions of general type R, R' CX minus, in which X is good leaving group. First, a major synthetic pathway of cyclization method is the Durgen's reactions. This is the base catalyzed reaction of carbonyl compound with a halogeno-methylene compound by yield a product containing oxirane. Aliphatic aldehydes give poor yield due to formation of side product in Durgen reaction. The reaction is stereoselective and gives trans oxiranes. तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रांस ऑक्सीडेंस का फॉर्मेशन इससे होता है। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है बेंजेल्डिहाइड ऑन कंडेंसेशन विथ पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड गिव्स टर्शरी ब्यूटाइल बीटा फिनाइल ग्लाइकोसेट. Aromatic aldehyde on condensation with phosphorus triamides gives oxiranes. Third method है alpha haloketones on condensation with Grignard reagent give halohydrins which on dehydrohalogenation forms oxiranes. तो ये oxiranes का formation इससे हो जाता है। Reaction of dimethyl oxosulfonium methylate sulfur yields with carbonyl compound provide oxiranes. It involves nucleophilic attack from the less hindered site to form C-C bond. C6H5 CHO plus CH3 whole twice S double bond O double bond CH2. Dimethyl sulfonium methylate also provides methylene group and transfer it to the carbonyl group forming oxirane. It involves nucleophilic attack from the more hindered side. The mechanism for reaction is represented as follows. ये इसकी रिएक्शन है, किस तरह से रिएक्शन होती है। CH3 whole twice S double bond O double bond CH2
CH3 whole twice S double bond O plus CH2 माइनस। और फिर ये जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड के प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीजन्स का फॉर्मेशन करते हैं। द डिफरेंस इन द साइड ऑफ अटैक हैज बीन attributed to the less reactivity and greater stability of sulfur yield. रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस अगर हम देखें ऑक्सीडेंट्स की, this is very wide range of reaction of oxidants. Most of the reactions are dependent upon their stereochemistry and substituents. Only the more important general reactions are given here. First is a ring opening reaction. The ring is readily cleaved by a variety of reagents because of strain present in the oxidant ring. In the solution, the reaction of oxidants involves both electrophilic and as well as nucleophilic attack. First, electrophilic ring opening reactions. Electrophilic reagents attack on the oxidants most readily with the opening of bond between oxygen and the least substituted carbon atom. The reaction of the ring opening is considerably affected by the nature of substituents present on the oxidant ring. Electron attracting group substituent present on the oxidant's ring stabilizes the carbonium ion and directs the cleavage of ring in the direction of stabilized carbonium ion. The electron with withdrawing group reveals the reaction because the carbonium ion is destabilized. तो इसके अंदर हम देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट होता है तो ऑक्सीजन रिंग जो है वो स्टेबलाइज होती है, कार्बोनियम आयन और डायरेक्ट क्लीवेज ऑफ रिंग डायरेक्ट इसमें कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन से होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम रखते हैं तो इसमें रिएक्शन रिवर्स होता है कार्बोनियम आयन की डिस्टेबिलिटी के कारण। फिर है एसिड chloride reacts with oxidants as follows. Electrophilic attack on the heteroatom results in the formation of an intermediate oxygen ion, which being most reactive is readily attacked by chloride ion at the carbon atom with opening of the ring. तो ये opening of ring के लिए जो है बहुत important हमारी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिंग्स रिएक्शंस इन्वॉल्व्स अटैक एट द अपोजिट टू द ऑक्सीजन एटम विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिएक्शन विथ एक्वस अमोनिया एट रूम टेम्परेचर प्रोड्यूसेस एमिनो एल्केनॉल। तो ये एमिनो एल्केनॉल के बनने को बताता है। तो ये हम कुछ रिएक्शंस हम देख रहे हैं, रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। इसी क्रम के अंदर अगर हम देखें कि इन एसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीडेंट्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेक्स प्लेस एट लेस हिंडर्ड कार्बन। जहाँ पर कि कार्बन की हिंड्रेंस बहुत कम होगी वहाँ पे इसका अटैक होगा सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीडेंट। द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड द रिएजेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रिएक्शन। इसके अंदर अगर हम ऑक्सीडेंट की रिएक्शन जो ऑर्गेनिक ऑक्सीडेंट्स हैं उनकी रिएक्शन हम सॉल्वेंट और जो हमारा रिजेंट है उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। एक पाथ से जबकि हम C6H5OH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ये बनेगा, और अगर हम
ये वाला बनेगा अगर हम C6H5OH की रिएक्शन करवा रहे हैं। और इसी तरह से दूसरा कंपाउंड जो है वो दूसरे पाथवे से गर्म करवाते हैं तो प्रोडक्ट ये बनता है। तो रिडक्शन ऑफ एसिमेट्रिकल ऑक्सीजन विथ lithium aluminum hydride in the presence of aluminum chloride produces 2-phenyl ethanol. Reduction of asymmetrical oxygen with lithium aluminum hydride produces highly substituted alkanol. इनसे जो है वो substituted alkanols का फॉर्मेशन होता है। Reaction of asymmetrical oxygen with lithium aluminum hydride produces highly substituent alkanols. इनसे रिंग ओपनिंग होती है और ऑक्सीजन्स का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन्स रिएक्ट विथ Grignard reagent to produce long chain एल्केनॉल्स। इनके अंदर एल्केनॉल्स का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से जैम ऑक्सीजन्स रिएक्ट विथ Grignard reagent and produces rearranged alkanol. Vinylic oxidants reacts with Grignard reagent to produce a mixture of normal and predominating acyclic reagent rearranged प्रोडक्ट। तो इसके अंदर rearranged प्रोडक्ट भी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस यील्ड ऑफ फॉस्फिनेट। The reaction takes place with the Walden of inversion. Other ring opening reactions में हम देखें, फर्स्ट है थर्मल रिएक्शन। The cis and trans oxidants reacts with trialkali or triphenyl phosphine at cleaved temperature and is evaluated temperature with removal of oxygen, providing stereoselective alkane and the tertiary phosphorine oxide. Reaction with weak nucleophiles. Oxidants derivatives reacts with weaker electrophiles to give allyl alcohol with the cleavage of CO bond and the subtraction of proton from less substituted carbon. रीअरेंजमेंट्स रिएक्शन के अंदर हम देखें कि ऑक्सीडेंट्स अंडरगो थर्मल आइसोमराइजेशन टू कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड MgBr2 ईथर और BF3 either Mg2O anhydrous MgBr2 ether or BF3 ether also converted oxidants into carbonyl compound. तो इनसे भी हम बना सकते हैं कि किस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेन ऑन ट्रीटमेंट विथ सर्टन मेटल कैटलिस्ट्स रीअरेंज टू कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हमने देखी कि किस तरह से जो है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हिट्रोसाइक्लिक 3 मेंबर्ड हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में काम आते हैं और ये रीअरेंज होके कार्बोनिल कंपाउंड और इम्पॉर्टेंट अल्कोहलिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ऑक्सीडेंट्स की रिंग ओपनिंग रिएक्शंस हमने देखी। इसी क्रम के अंदर ऑक्सीडेंट्स रीअरेंज टू कार्बोनिल कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड की प्रेजेंस के अंदर भी ये रीअरेंज होते हैं और रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसके अंदर हम देखें कि कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीडेंट्स एंड प्रोवाइड डाईऑक्सिलोन
ऑक्सीलेंस with cleavage of CO bond and undergo ring expansion. कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस हैं, उनमें ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ SbF5HF at 20 degree centigrade to form polymeric ethers. Oxygen is converted into the turmeric form 1,4,7 trioxycyclonone is antimony pentafluoride at 50 degree centigrade. Triphenyl phosphine eliminated the oxygen from oxygen. The cis isomer produces mainly the trans olefins. Triphenyl phosphine silend also eliminates the oxygen from the oxygen present in trifluoroacetic acid and forms olefins with reaction of configuration. Oxygen is also eliminated by SC-TE compounds. तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है वो इसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, और ये 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इससे करवाते हैं तो ये 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से जब हम ट्राइफेनाइल फॉस्फीन सेलेडिना के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो इससे भी हमें 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हमने देखी ऑक्सीडेंट्स के बारे में कि ऑक्सीडेंट्स कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस देते हैं, किस तरह से हम इन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है वो हमने देखी। ये सबसे कॉमन रिएजेंट है जिससे कि हम बना पाते हैं ऑक्सीडेंट्स। इसके बाद में नेक्स्ट मेंबर है थायोरेंस। थायरेंस के अंदर जैसा कि हम नाम से जानते हैं थायो मतलब सल्फर, जिसके अंदर की एक सल्फर हीट्रो एटम जो है वो प्रेजेंट होता है, थायरेन इनको हम बोलते हैं। तो क्या हो गया, द सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक 3 मेंबर्ड रिंग containing 1 sulfur atom is called thyrenes। ठीक है, तो ये थायरेंस हैव नॉट बीन फाउंड टू अकर इन द नेचर में नहीं मिलते हैं, इन्हें हम जो है वो लेबोरेटरी के अंदर ही स्पेशल कंडीशंस के अंदर सिंथेसाइज कर पाते हैं। तो इसके बारे में हम और भी आगे देखेंगे क्या इनका सिंथेसिस है और किस तरीके से जो है वो हम बच्चों आपको बता पाएंगे कि किस तरह से ये बनते हैं। तो ये सब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।